میرے اس افسانے کا عنوان ہے کچرا کنڈی۔ پھٹے ہوئے مڑے توڑے بدرنگ کاغذ، سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے، پکی ہوئی چائے کی پتی، چسی ہوئی ہڈیاں، ڈبل روٹی کے ٹکڑے اور سالنوں کا ڈھیر جس میں سے اب سڑان آنے لگی تھی، اور شاید سڑان تو اب پورے کچرے کے ڈھیر میں ہی سے آ رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب کچھ دیر پہلے کچرے کے اس ڈھیر کے ساتھ دیوار کے اس طرف فلیٹو کا رہائشی گھنی مونچھوں والا شخص ایک بنی سنوری اسمارٹ سی خاتون کے ساتھ اپنی چمکتی دمکتی کار میں وہاں سے گزرا۔ کار کے شیشے بند ہونے کے باوجود اس نے کچرے کے ڈھیر کے قریب اپنے منہ پر رومال رکھ لیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کچرے کا ڈھیر ان بڑے لوگوں کے لیے کتنا بدبودار ہے، ورنہ میں تو گزشتہ آدھے گھنٹے سے مسلسل اس کچرے کے ڈھیر میں سے اپنے لیے جھوٹی غذا تلاش کر رہا ہوں، غذا جو میرے پیٹ کی آگ کو سرد کر سکتی تھی، میرے معدے کے اندر غار میں اتر کر مجھے دوبارہ جینے کی راہ پر ڈال سکتی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے تیزی سے کچرے کے ڈھیر کو ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ اچانک ایک پلاسٹک کی بندھی ہوئی تھیلی اوپر والے کسی فلیٹ سے آ کر گری۔ میں نے گیلریوں کی طرف دیکھا۔ تیسری منزل پر لوہے کی جالیوں میں اوسے ہوئے دھاری دار تولیے اور رنگ برنگے کپڑوں کے پیچھے کوئی حرکت تیزی سے فلیٹ کے اندر چلا گیا۔ میں نے تھیلی کو اٹھا لیا، گرہ کھولی۔ اندر بروسٹ کے 2 ڈبے، بیئر کی ٹین، شراب کی خالی بوتل اور غلیظ استعمال شدہ لسڑے ہوئے ربر کے غلاف پڑے ہوئے تھے جن میں سے مہک آ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں شاید رشتوں اور تعلقات کے مسائل پر غور کرنے لگتا، مگر مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ان تمام چیزوں کو بروسٹ کے ڈبوں سے علیحدہ کیا اور ادکھلے ڈبے کی تلاشی لینے لگا۔ اوپر والے ڈبے میں مرغی کی پوری ران اور آلو کی چپس موجود تھی۔ میں نے دوسرا ڈبہ اٹھایا، اس پر ربڑ چڑھا ہوا تھا۔ آج میں نے جیسی اس کو اتارا، کوئی چیز اچھل کر گود میں آ گری۔ میں نے سر جھکا کر اپنے دامن میں گرنے والی چیز کو دیکھا اور پھر اٹھا لیا۔ یہ ایک انگوٹھی تھی، یقیناً سونے کی رہی ہوگی۔ میں نے انگوٹھی اور انگلی کے بیچ بنی ہوئی انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ میں نے انگوٹھی اور انگلی کے بیچ دبی ہوئی انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ انگوٹھی کے اوپری حصے میں جڑے ہوئے پتھر جگمگا رہے تھے۔ پتھروں کی چمک دمک ان کے قیمتی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کہیں یہ ہیرے تو نہیں ہیں؟ یہ خیال تیزی سے میرے دماغ میں ابھرا۔ میں نے اب زیادہ توجہ اور انہماک سے انگوٹھی اور اس میں جڑے ہوئے پتھروں کو دیکھا، جن میں ہزاروں سمتوں سے کرنیں کچھ اس طرح نکل رہی تھی جیسے ان گنت اسپاٹ لائٹس کو مختلف زاویوں سے زمین پر رکھ کر روشن کر دیا ہو۔ میں نے انگوٹھی کو ذرا جنبش دی تو کرنیں اپنا رنگ بدلنے لگیں، پہلے سرخ، پھر نیلا، پھر اچانک سفید۔ میں اپنے ماحول کو نظر انداز کر کے کرنوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بال سے زیادہ باریک ان چمکدار لکیروں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ کرنوں کو چھو کر رہ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہیرے ہی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ میں نے انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا مال پہلے جس کا بھی تھا، لیکن جس کو مل جائے اب تو اسی کا۔ میں نے دوسرے ہاتھ میں بروس کا ڈبہ تھاما اور وہاں سے اٹھ گیا، سڑک پار کی اور پھر سڑک کے دائیں جانب میدان کے گرد اٹھی ہوئی 4-5 ردوں کی دیوار پھلانگ کر دوسری طرف اتر گیا جہاں لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ انگوٹھی میری جیب میں تھی۔ میں مرغی کی ٹانگ کو دانتوں سے بھنبوڑ رہا تھا۔ 2 ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوجوان نے ایک زوردار ہٹ لگائی۔ دور ہاتھ میں پکڑے بلے سے نوجوان نے ایک زوردار ہٹ لگائی۔ گیند تیزی سے لڑکتی ہوئی میری سمت آ گئی۔ لڑکوں نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے اس چھوٹی سی گیند کو غربت کی گٹھریا سمجھتے ہوئے حقارت بھری ایک زوردار ٹھوکر مار دی۔ گیند غربت کی طرح میرے نزدیک آ کر اب بہت دور چلی گئی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا انور کے پاس چلا آیا۔ میرے بوسیدہ کمبل کے آدھے حقدار انور بھائی چالاک آدمی ہونے کے علاوہ ذہین اور معاملہ فہم بھی ہے۔ وہ کہ وہ میری طرف اٹھ پاتی ہیں، لیکن یہ تو حالات کی ستم ظریفی ہے، ورنہ یہ شخص اگر کسی اہم منصب پر ہوتا تو یقیناً بہت آگے تک جاتا۔ اب جبکہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ وہ میری طرح فٹ پاتی ہیں تو پھر حلیہ بتانا بیکار ہے۔ بس جیسے عام فٹ پاتی ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بھی ہیں اور ویسا ہی میں بھی ہوں۔ ہاں، فرق ہے تو یہ کہ وہ ذرا پڑھ لکھ کر فٹ پاتھ پر چلے آئے اور میں تقریباً جاہل ٹیکسی چلاتے ہوئے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ ہم دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ ہم دونوں کی زندگی میں ترقی کا زینہ کبھی نہیں آیا، بلکہ سارا سفر خط معکوس کی طرح
उल्टा ही चला। ये लफ्ज मैंने अनवर ही से सीखा है। अनवर के सिगरेट से फेंके हुए अनवर के सिगरेटों से फुलके हुए सीने पर उभरी हुई मुतवाजी पसलियों की तरह रेल की लातादाद पट्टियों की दूसरी तरफ से बनी हुई ये कोठरी में जब मैंने अनवर को वो अंगूठी दिखाई तो उसने बेनियाजी से कहा, इसको तू कहीं जाकर बेच नहीं सकता, ले देकर इसे बाबू ही को देना पड़ेगा और बाबू इसके बदले में पैसा पाई कुछ दे देगा, बस कुछ दिन तक हमारे हिस्से की पुड़ियां देता रहेगा और फिर एक दिन कहेगा कि अबे जा तेरा हिसाब पूरा हो गया। अनवर भाई ये मेरे हैं, अनवर भाई ये हीरे हैं, हीरे, ना तो इसे बाबू को दूंगा ना ही पुड़िया लूंगा, मैं इससे एक टैक्सी लूंगा, अभी मेरे बाजू में गाड़ी चलाने की ताकत है। मेरे दोस्त, हम जैसे लोगों को ये बाबू ही सूट करता है। अगर तू बाजार में इस अंगूठी को बेचने जाएगा तो दुकानदार वैसे ही तेरा हुलिया देकर पुलिस के हवाले कर देगा। चोरी का माल बेचना इतना आसान काम नहीं है। अनवर भाई मैंने चोरी नहीं की है, अल्लाह की जमीन से उठाई है, ये किसी फ्लैट वाले की माशूका की अंगूठी लगती है। तुझे कैसे मालूम ये किसी माशूका की अंगूठी है, बीवी की नहीं है? जिस थैली में से ये अंगूठी निकली उस थैली में 4 चीजें और थीं जो कि कम से कम बीवी वाले नहीं फेंकते। फिर मैंने जब खुशबूदार डब्बे, बदबूदार बोतलें और लेसदार चमकते हुए रबर के खिलाफ के मुतालिक अनवर को बताया तो हंसने लगा और फिर बोला, तज्जिया तो तेरा बिल्कुल दुरुस्त है यार अनवर भाई। अगर मैंने सारी जिंदगी टैक्सी चलाई और अपनी टैक्सी में ऐसी हस्तियों को सफर करवाया कि बता नहीं सकता। मैं बैठे हुए एक एक आदमी और एक एक औरत को देखकर बता सकता हूं कि वो क्यों जा रहा है, खुश जा रहा है या घर से लड़कर जा रहा है या कहीं और जा रहा है। उन्होंने कान पर धरी सिगरेट मेरी तरफ से बढ़ाई जिसे मैंने फौरन झपट लिया। वो बोला, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये बता तेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। एक बेटी थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई, दामाद से तो कोई ताल्लुक नहीं रखता, फिर टैक्सी किसके लिए चलाएगा? अनवर की बात सुनकर मेरे हाथ में जलती हुई तीली के शोले ने मेरी यादों को रोशन कर दिया। उन दिनों में अपनी जिंदगी के सख्त तरीन दौर से गुजर रहा था। मेरा वाहिद रोजी का जरिए टैक्सी बिक चुकी थी, बीवी को मरे हुए कई साल हो चुके थे। जिस बेटी की शादी के लिए टैक्सी बेची वो अपने ससुराल वालों के जुल्म और ज्यादती की वजह से चल बसी। जब मुझे शक हुआ कि उसे जलते हुए चूल्हे और उस पर रखे खोलते पानी पर धक्का दिया गया तो मैं थाने जा पहुंचा, लेकिन वहां मुझे गरीब की सुनने के बजाय हवालात में बंद कर दिया गया। पता चला मेरे समधी के बड़े लोगों से ताल्लुकात है। वहीं थाने की ताफुन ज़्यादा कोठरी में पहली बार चर्स और हीरोइन से आशना हो गया। फिर हफ्ते बाद थानेदार मेरी बदली हालत देखकर पहले तो खूब हंसा और फिर बोला, चाचा बंदे को पंगा अपने बराबर वाले से लेना चाहिए, अब जा ऐश कर, तेरी छुट्टी कर रहा हूं। थाने की फजल से बाहर मिलने वाला पहला शख्स अनवर था, जिसका आधा कंबल अब मैं ओढ़ता हूं या जो मेरे आधे कंबल का मालिक है। मैं याद के शोले को बुझा दिया और फिर बोला, अनवर भाई टैक्सी अब मैं तुम्हारे लिए चलाऊंगा। जैसे तुम पहले लिखा करते थे बस वैसे ही लिखना। तुम बस दिन रात लिखना, इस दुनिया के एक एक जुल्म के खिलाफ लिखना। मैं तुम्हारे लिखे हुए कॉलम अखबार के दफ्तर में खुद देकर आया करूंगा। जब वो छपे तो बस इनकलाब आ जाए, ऐसा इनकलाब जिसमें सारे जुल्म करने वाले फांसी पर चढ़ा दिए जाए, सारे दरिंदे इंसानों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाए और तमाम मोटे पेट वालों के पेट चीर कर उनकी जमा की हुई सारी दौलत गरीबों में बांट दी जाए। कोई अदालत नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई इधर पकड़ो इधर फैसला सुनाओ, खत्म। अनवर ने मुझे इशारा किया कि जैसे कह रहा हो कि बस इतना भी जज्बाती ना हो। मेरी आवाज जोशो जज्बात में से भर गई थी। अनवर के इशारे पर मैं खामोश हो गया। अनवर ने पूछा, वो थैला कहाँ है जिसमें से ये अंगूठी निकली थी? वो वही होगा कचरे पर, चल मेरे साथ चल, वो थैला लेकर आते हैं, इसका मौजूद होना जरूरी है। हम दोनों रेल की पटरी पार करके सड़क के साथ चलते रहे। कुछ फासले पर वो फ्लैट खड़े थे जिनकी दीवार के साथ कचरा कुंडी बनी हुई थी। कचरे के ढेर में कुछ इजाफा हो गया था, ताहम जरा सी कोशिश से वो थैला मिल गया जिसमें ब्रोस्ट का डब्बा और दूसरा सामान फेंका गया था। अनवर भाई ने थैला उठा लिया और कहा, चलो चलते हैं। किसको बेचना और कैसे बेचना है ये तो बात की बात है, पहले मैं तुझे एक तमाशा दिखाता हूं। खाली डब्बे, बोतलें और महके हुए थैले को उठा लाने की वजह सुबह पता चल गई, जब फ्लैटों में वाक़े मस्जिद के स्पीकर से अनवर भाई ने यह ऐलान करवाया कि सबसे आखिरी ब्लॉक के मकीनों का अगर कोई कीमती जेवर गुम हुआ है तो निशानी बताकर गेट पर मौजूद अनवर हुसैन से ले जाएं। जरा देर में आखिरी ब्लॉक के 8 मकीन, जिनमें
3 खवातीन भी शामिल थी, गेट पर मौजूद थे। मजमा इकट्ठा हो गया था। मुझे अब अनवर भाई के तमाशे का इंतजार था। एक साहब बोले, देखें जी, चीजें तो अक्सर गुम होती रहती हैं, अब पता नहीं आप हमारी कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दिखाएं तो पता चलेगा। अरे शाह जी, मेरा छोटा बेटा टिम्मी तो अक्सर गैलरी से बहुत कीमती चीजें फेंक देता है, यकीनन उन्हीं में से कुछ होगा। लाए मैं दिखाए, मैं टिम्मी को मैं पहचान लूंगी। मोटे आदमी ने कहा। इसी सना में एक खातून आगे बढ़कर बोली, अरे भैया, तू चूल्हे पर सालन चढ़ा कर आई हूं, मैं तो चूल्हे पर सालन चढ़ा के आई हूं। 3 दिन से मैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स की 3 निहायत कीमती चीजें तलाश कर रही हूं, जरा दिखाओ तो सही किधर है वो। मैं खड़ा इन लोगों की बातें सुन रहा था। मैंने देखा इनमें चमकती दमकती स्याकार का मालिक, घनी मूंछों वाला शख्स भी एक मोटी सी घरेलू खातून के हमरा खड़ा हुआ था, जो कि मेरे कुछ कचरे में गुज़र तलाश करते वक्त नाक पर रुमाल रखे वहां से गुजरा था। उसे देखकर मुझे वो कार वाली स्मार्ट खातून भी याद आ गई। सबको मौजूद पाकर अनवर भाई ने कहा, वो कीमती चीज इस वक्त मेरी जेब में है, लेकिन उसे दिखाने से पहले आप लोगों को एक और चीज शनाख्त करना होगी, क्योंकि वो कीमती चीज हमें उसके अंदर से मिली है। जो भी शख्स ये कह देगा कि ये दूसरा सामान उसका है, सीधी सी बात है, हम वो कीमती चीज उसके हवाले कर देंगे। ये कहकर अनवर भाई ने प्लास्टिक का थैला आगे रख दिया। एकदम कई आवाजें उठ गईं। अरे ऐसे थैले तो हमारे घर में से सामान आया करता है। दूसरी आवाज आई, मैं भी लाया था। तीसरी आवाज आई, अरे मियां, मेरी टम्मी ने ऐसे ही तो थैला ऊपर से फेंका था। मैं खामोशी से तमाशा देख रहा था। अनवर भाई ने मुस्कुराकर सबको देखा और फिर आगे बढ़कर थैले के अंदर हाथ डाला और एक एक करके सारी चीजें दिखाने लगी। पहले एक बियर का टिन, फिर दूसरा बियर का टिन, फिर तीसरा ब्रोस्ट का डब्बा। अनवर भाई एक लम्हे को रुक गए। सबसे आगे खड़ी खातून बोली, मेरा बेटा अदनान हर दूसरे दिन ब्रोस्ट लाता है और वही कभी कभी इन अल्कोहल भी कभी कभी पी लेता है, पेट के लिए अच्छी होती है। मेरा बेटा अदनान हर दूसरे दिन ब्रोस्ट लाता है और वो कभी कभी अल्कोहल बियर भी पी लेता है, पेट के लिए अच्छी होती है ना इसकी उसी की। अनवर भाई का हाथ थैले में से एक बार फिर बरामद हुआ। शराब। कई लोगों ने बैक वक्त शराब की शीन को लंबा खींचते हुए कहा, आंटी ये भी अदनान ही पीता होगा। एक मनचले लड़के ने तंजिया पूछा। खातून ने बुरा सा मुंह बनाया। माले गनीमत समझकर आने वाली खवातीन के कदम पीछे हट गए। मर्द बहरहाल ढिटाई से खड़े हुए थे। यार, थैले में से जो कुछ भी है निकालो, ताकि जो भी असल दावेदार है वो सामने आ जाए, एक साहब ने कहा। स्याह कार वाले ने उन्हें घूर कर देखा और फिर अपनी बीवी की तरफ देखते हुए अपने हाथ से अपनी गर्दन मसलने लगा। आखिरकार अनवर भाई ने आखिरी चीज भी थैले से बाहर निकाल ली। अनवर भाई का लहराता हुआ हाथ देखकर तमाम खवातीन और मर्द हजरात एकदम पीछे हट गए। लाहौल वला कुव्वत, अजी ये क्या वाहियात हरकत है, ये क्या गंदी गंदी चीजें दिखा रहे हो। मियां, हमारे घर में ऐसी खराफात नहीं आती, समझे। टिम्मी के मोटे अब्बू ने मुंह बनाते हुए कहा और बड़े तखाफुर से चल दिए। अरे मियां, तौबा तौबा, दूसरे ने कहा। अस्तगफिरुल्लाह, शाहजी की आवाज आई। ख्वातीन ने एक दूसरे को झेंपते हुए देखा। स्याह कार वाले ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। मैंने महसूस किया कि वो अनवर को गुस्से से घूर रहा था। अनवर ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, अगर इन तमाम चीजों का कोई दावेदार है तो मैं ये कीमती जेवर अभी उसके हवाले किए देता हूं। लेकिन एक एक करके सब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मैं हंसने लगा। अनवर भाई ने मुझे देखा और फिर अपनी जेब पर हाथ मारते हुए बोला, इज्जतदार लोगों को इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है।